بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں عمران ادیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ورلڈ۔ خواتین حضرات، پچھلی ویڈیو میں نے ایلینز کی حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ ہم نے اس خوف پر کاری ضرب لگائی جو گزشتہ ایک صدی سے اہل زمین پر سیاہ رات کی طرح چھایا رہا۔ ہم نے ثابت کیا کہ ایلینز کسی دور دراز کے سیارے کی مخلوق نہیں بلکہ انسان کا اپنا ہی اپنایا ہوا ایک روپ ہے۔ اس روپ کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں بھولی بالی عوام کو جلوہ طور دکھایا کرتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بن بادل بجلیاں چمکایا کرتے تھے۔ صدیوں سے نفسیات کے کھلاڑی یہ لوگ جب 19ویں صدی میں داخل ہوئے تو انہیں ٹیکنالوجی کا چراغ مل گیا۔ یوں ہر اس خوف کو حقیقت کا رنگ ملنے لگا جو نفسیاتی طور پر انسان کے ساتھ جنم لیتا ہے۔ خواتین حضرات، میں ایک بات پر معذرت خواہ ہوں کہ پچھلی ویڈیو میں مجھ سے ایک لفظی چونک ہوئی۔ میں یو ایف او کی رفتار 700 کلومیٹر فی سیکنڈ کے بجائے فی گھنٹہ بول گیا، جبکہ اس کی حقیقی رفتار 700 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ خواتین حضرات، انسان صدیوں سے سوچتا آیا ہے کہ کیا اس جیسا کوئی اور وجود بھی کائنات کے کسی کونے میں موجود ہے؟ اگر ہے تو وہ ہم سے کتنا زور آور ہے۔ 19ویں صدی کے وسط میں یہی نظریہ اس وقت حقیقت کا روپ دھار گیا جب لوگوں نے آسمان سے عجیب و غریب مخلوق ایلینز کو زمین پر اترتے دیکھا۔ پھر اس نظریے کو حقیقت کے ساتھ دہشت انگیز بنانے کے لیے فلموں اور ڈراموں کا سہارا لیا گیا۔ یوں ایلینز کو ایک الگ مخلوق مان لیا گیا۔ لوگوں کے اذہان میں ایلینز کو کسی تیسرے چوتھے سیارے کی مخلوق باور کروا دیا گیا۔ یہ سب کیسے ہوا میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ خواتین حضرات، آج ہم کافی اہم پوائنٹس پر بات کرنے والے ہیں، جن میں پہلا پوائنٹ یو ایف او کو جاننا ہے۔ یو ایف او کی حقیقت تو آپ جان چکے ہیں، لیکن اس کا ٹیکنیکل جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ یو ایف او پلاسٹک طرز کی ایک دھات سے تیار کی جاتی ہے جس پر مختلف دھاتوں کی چادر اوڑھی جاتی ہے۔ کل ملا کر یہ ایک نہایت چمکدار فلائنگ آبجیکٹ بن جاتی ہے۔ یو ایف او دنیا کی سب سے تیز ترین اڑنے والی مشین ہے۔ یہ ایک سیکنڈ میں 700 کلومیٹر طے کر جاتی ہے، یعنی 25,20,000 کلومیٹر فی گھنٹہ طے کر سکتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی پرواز کا دار و مدار ہوا اور پروں کے بجائے کشش ثقل پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی رفتار نہایت غیر معمولی ہوتی ہے۔ خواتین حضرات، یو ایف او فضا میں گھنٹوں رک سکتی ہے۔ یو ایف او بوقت ضرورت اپنا سائز بڑھا سکتی ہے، اتنا بڑا کر سکتی ہے کہ پورا ایک شہر اس کے سائے میں آ جائے۔ یو ایف او فضا کی طرح پانی میں بھی نہایت تیزی سے سفر کر سکتی ہے۔ یو ایف او کا سب سے اہم کمال اس کے اندر سے مخصوص شعاعوں کا نکلنا ہے۔ یہ شعاعیں کسی بھی علاقے کا مواصلاتی نظام جام کر سکتی ہیں۔ یہ ہماری بجلی اور تمام تر ٹیکنالوجی کو فیل کر سکتی ہیں۔ یہی شعاعیں کسی بھی بلڈنگ پر بغیر بم چلائے دگنی تباہی مچا سکتی ہیں۔ یو ایف او کا ایک اہم فنکشن کلین سیٹلائٹ بھی ہے، یعنی کسی بھی سیٹلائٹ کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر سکتی ہیں۔ یہ اپنے مخصوص سگنلز کے ذریعے کسی بھی چیز کو فضا میں اٹھا سکتی ہیں، یہاں تک کہ کسی بھی وجود کو ٹرانس میں لے سکتی ہیں۔ خواتین حضرات، یقیناً آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ کیا انسان کے پاس اس قدر جدید ٹیکنالوجی موجود ہے؟ حالانکہ یہ وہ دور ہے جب ابھی ہم 2 پروں والے جہاز کے نئے ویژن تیار کروانے پر غور و خوض کر رہے ہیں۔ ابھی ہمیں اپنے دفاع کے لیے تیز ترین ہتھیار بنانے ہیں۔ ابھی ہمیں اپنا بہت کچھ جدید کرنا ہے، لیکن دوسری طرف انسان کا ایک ایسا روپ بھی ہے جہاں وہ آج کی دنیا سے 4 صدیاں آگے جی رہا ہے، اور یہ جینا بہت خفیہ انداز میں ہے۔ خواتین حضرات، ہمیں یہ چیز بخوبی سمجھ لینی چاہیے کہ آج کی ٹیکنالوجی انسانیت کی خدمت کے لیے تیار نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ ایک عالمی جنگ کی خفیہ تیاریاں ہیں۔ اینڈرائیڈ موبائل ہو یا سیٹلائٹ سگنلز، سم ٹیکنالوجی ہو یا میڈیا، غرض ہر مقام سے پوری دنیا کو نامعلوم گھیرے میں کسا جا رہا ہے۔ نادیدہ ہستیاں ہر وقت آٹومیٹک نظر رکھے ہوئے ہیں۔ طرح طرح کے ٹرینڈز کے ذریعے نفسیاتی جائزے لیے جا رہے ہیں۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ 2020 میں گوگل کاریں لانچ کی جائیں گی جو خود کار طریقے سے سفر کریں گی۔ دنیا میگزین کی حالیہ رپورٹ کے مطابق وہ کاریں اپنے گرد و نواح میں 30 کلومیٹر تک بالکل صاف جاسوسی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں گی۔ وہ دیواروں سے پار اور تاریکیوں کے اندر صاف دیکھ سکتی ہوں گی۔ یوں حساس ادارے اور دیگر نو گو ایریاز بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔
कुल मिलाकर पूरी दुनिया आलमी कुफर के लिए खुला और रोशन मैदान बनाने की आलमी कोशिश की जा रही है। मुस्तकबिल में एक एक फर्द पर उनकी इनफरादी ऑटोमेटिक नजर होगी। ख़वातीन व हज़रात, यही वो फितना है जिसके मुतल्लिक अहादीस में बयान हुआ है कि लोग अपना ईमान बचाने के लिए जंगलों का रुख करेंगे, लेकिन फितने वहां भी पहुंच जाएंगे। जाहिरी बात है कि जब इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हर वक्त आपको देख रही होगी तो आप कुफर की साजिशों से हरगिज़ नहीं बच सकेंगे। ख़वातीन व हज़रात, अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। अगर हम यूएफओ का तफसीली जायजा लें तो साफ जाहिर होता है कि हम तक पहुंचने वाली टेक्नोलॉजी असल टेक्नोलॉजी से आधी भी नहीं है, या यूं कह लें कि 100 में से सिर्फ 30% टेक्नोलॉजी दुनिया को दी जा रही है, जबकि बाकी 70% नामालूम लेबोरेटरियों में महफूज की जा रही है ताकि मुस्तकबिल में तकरीब कारी और खौफ पैदा करके लोगों को अपने अजायम की भीड़ चढ़ाया जा सके। ख़वातीन व हज़रात, लोगों की एक कम्युनिटी एलियंस को जिन्नात की एक किस्म समझती है। उसकी वजह यह है कि यूएफओ की तरह एलियंस भी फजा में उड़ते देखे गए हैं, बसा औक़ात इन्हें गायब होते भी देखा गया है। यही वजह है कि अच्छे भले रिसर्चर्स भी इन्हें जिन भूत करार दे रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि इस सारी कार्रवाई में यूएफओ असल किरदार अदा करती है। वो फजा में बहुत ऊंचाई पर या करीबन बादलों में रुककर एलियंस को मॉनिटर कर रही होती है। जैसे ही एलियन खतरा महसूस करते हैं वो इन्हें ऊपर खींच लेती है या मिरर रिफ्लेक्शन लेजर के जरिए नजरों से ओझल कर देती है, जिससे गायब होने और उड़ने का तासुर पैदा होता है। हालांकि ये सरासर टेक्नोलॉजी का खेल है। अब सवाल यह है कि एलियंस, इल्यूमिनाटी और अमेरिका में क्या ताल्लुक है। सबसे पहले हमें एलियंस और इल्यूमिनाटी के ताल्लुक को समझना होगा। इल्यूमिनाटी एक तकूनी शक्ल के घेरे को अपना मजहबी सिंबल मानते हैं जो कि मिस्री पिरामिड्स की निशानदेही करता है। इस तकूनी घेरे से ऊपर बनी आंख मिस्री दौर से दज्जाली दौर तक के सफर को जाहिर करती है। यही तकूनी घेरा इल्यूमिनाटी का मजहब और पूरी दुनिया के फसादात की वजह है। अब अगर हम यूएफओ के बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो ज्यादातर यूएफओ की शक्ल इल्यूमिनाटी सिंबल जैसी होती है। ये महज इत्तेफाक नहीं है बल्कि बहुत बड़ी हकीकत है। अगर हम बरमुदा ट्रायंगल को भी देखें जिसके मुताल्लिक मशहूर है कि वहां अक्सर यूएफओ को देखा गया है, उस इलाके की शक्ल भी इल्यूमिनाटी सिंबल जैसी जाहिर की गई है। इसके अलावा बहुत दफा यूएफओ को एहराम मिस्र के गिर्द तवाफ करते भी देखा गया है, जबकि एहराम मिस्र इल्यूमिनाटी के लिए किसी मुकद्दस मकाम जैसा दर्जा रखते हैं। ये वही एहराम मिस्र हैं जिसके गिर्द बैठकर इल्यूमिनाटी कम्बाला नामी अमल करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, इसके अलावा एहराम मिस्र से एक फासले पर 6000 साल पुराना कब्रिस्तान है जिसके दाएं तरफ सदियों पुरानी इमारतें हैं। उन इमारतों में अक्सर पुरसरार लोगों को आते जाते देखा गया है। 2015 की एक सोशल नेटवर्क न्यूज वेबसाइट के मुताबिक अक्सर उन इमारतों पर यूएफओ को लैंड करते भी देखा गया है। चूंकि इल्यूमिनाटी ग्रोह का आबाई ताल्लुक फिरौन के दौर से है, ये उन जादूगरों की औलाद में से हैं जिन्होंने फिरौन को रब कहलाने पर उकसाया था, क्योंकि इनकी कोशिश हमेशा से जमीन पर खुदा बनने की रही है। यही वजह है कि आज भी इनके कौलो फेल से फिरौन का निजाम चलता है। ये खुद को कैन की औलाद कहते हैं, जबकि कैन को अरबी और उर्दू में काबिल कहते हैं, यानी ये दुनिया की उस शख्स की औलाद हैं जिसने सबसे पहला कत्ल किया था। खैर, हम बात कर रहे थे यूएफओ पर। ख़वातीन व हज़रात, जिस तरह एक इल्यूमिनाटी कारकुन अपने कौलो फेल से खुद को इल्यूमिनाटी साबित करता है, इसी तरह ये तकूनी यूएफओ भी अपने बॉडी स्ट्रक्चर और रद्द अमल से अपना ताल्लुक वाज़े करती हैं। ख़वातीन व हज़रात, एलियन और इल्यूमिनाटी एक ही चीज हैं। इस बात का दूसरा सबूत हमें सर्ज मुनाज की किताब दी प्रोजेक्ट ब्लू बीम से मिलता है, जिसमें आलमी तकरीब कारी के 4 लेवल्स बयान किए गए हैं। पहले लेवल में पूरी दुनिया की करेंसी डिजिटल कर दी जाएगी ताकि हर शख्स के मुआशी मेयार तक बराह रास्त रसाई मुमकिन हो सके। यही वजह है कि आज क्रेडिट कार्ड और पैरनर कार्ड जैसी सैकड़ों सहूलियात मंजर आम पर उभर रही हैं। दूसरे नंबर पर फेक एलियंस दुनिया पर हमलावर होंगे। हर तरफ इस कदर खौफ फैल जाएगा कि लोग एलियन की गुलामी पर मजबूर हो जाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, दज्जाल की फौज का हर हथकंडा लफ्ज आलमी गुलामी पर जाकर रुकता है, जिसे वन वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। 19वीं सदी में एलियन के तस्वर का रूनमा होना, फिर उस पर बाकायदा फिल्म साजी और नुमाइश का रूनमा होना, उस जंग की तरफ इशारा है जो नहायत पेचीदा होगी। ख़वातीन व हज़रात,
तीसरे नंबर पर आलमी तकरीबकार पूरी दुनिया में ऐसा माहौल पैदा करेंगे जैसा तमाम मज़ाहिब में दुनिया का आखिर लिखा गया है। यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान से उतरते दिखाई देंगे। इमाम मेहदी उनका इस्तकबाल भी करेंगे। लेकिन ये सब आलमी तकरीबकारों के तरतीब दिए हुए किरदार होंगे। इस खेल में ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी कि आसमान से फरिश्ते उतरते दिखाई देंगे, आसमान पर सीढ़ियां लगती दिखाई देंगी, आसमान पर दरवाजे बनते दिखाई देंगे। ये वो वक्त होगा जब ईमान नहायत खतरे में पड़ जाएगा। लोगों की एक कसीर तादाद लाइल्मी में दज्जाल के लश्कर से जा मिलेगी। इसी दौर को हदीस में कुछ यूं बयान किया गया है कि आखिरी जमाने में एक मोमिन ये सोचेगा कि वो तो मोमिन है और अच्छाई बुराई को पहचानता है, लिहाजा दिलचस्पी की खातिर फितनों की तरफ एक नजर उठाएगा और फितने उसे पहली नजर में ही उचक जाएंगे। दरअसल ये फितना प्रोजेक्ट ब्लू बीम के जरिए सर अंजाम दिया जाएगा। ये एक ऐसा गहरा वार होगा कि बड़े से बड़ा मुत्तकी परहेजगार भी हरगज ना बच पाएगा, मगर जिसे अल्लाह बचाए उसे कोई हला नहीं सकता। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले ही दुश्मन उनके खिलाफ पूरा बंदोबस्त कर चुका होगा। ख्वातीन और हज़रात, सर्ज मुनास की किताब के मुताबिक चौथे नंबर पर दुनिया में खून रेज जंगें होगी। हदीस में भी कुर्बे क़यामत में कत्ले आम से मुतल्लक आगाह किया गया है। स्याह व सफेद और पीले झंडों के मुतल्लक पूरी जानकारी दे दी गई है। जबकि सर्ज मुनास की किताब में भी लिखा है कि वन वर्ल्ड आर्डर के रहनुमा यानी इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तबकों के दरमियान मजहबी और मुआशरती जंगें शुरू करवाएंगे। खून रेजी इंतहा तक पहुंच जाएगी, हुकूमतें बेबस हो जाएंगी। इसी दौरान क़याम अमन के लिए एक आलमी फौज तश्कील दी जाएगी जो एक आलमी गवर्नमेंट की बुनियाद रखेगी। दर हकीकत यही वो मकसद था जिसके लिए पूरी दुनिया को तकरीबकारी का निशाना बनाया जा रहा था। यूं वन वर्ल्ड आर्डर गवर्नमेंट का आगाज होगा। यूं फिरऔनी दौर से दज्जाली दौर का जो सफर संबल में जाहिर किया जाता रहा है उसकी हकीकत जाहिर होगी। ख़वातीन और हज़रात, ये वो मनसूबा है जो आज से 30 साल पहले अमेरिका में तरतीब दिया गया और सर्ज मुनास ने उन्हें अपनी किताब में नकल किया। इस मनसूबे के समरात मंजर पर असर पजीर होना शुरू हो गए हैं। दुनिया में करेंसी खत्म हो रही है, एलियन हर रोज कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। झूठ के मंजर को सच कर दिखाने वाली टेक्नोलॉजी अपनी आखिरी आजमाइश भी कामयाबी से पास कर चुकी है। पूरी दुनिया में हर रोज खून की बू और चीखों का दर्द बढ़ता जा रहा है। छुप कर वार करने वाले खुल कर धाड़ने लगे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि सहरा में तूफान से पहले भयानक सुर्खी फैल रही है। ख़वातीन और हज़रात, ये बात एक तारीखी हकीकत है कि अमेरिका के वजूद के साथ ही इल्यूमिनाटी खुफिया तंजीम ने अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम पर कब्जा करके उन्हें अपना गुलाम बना लिया। आज भी अमेरिका की तमाम मईशत और ज़राए मईशत पर दज्जाल की फौज नाका लगाए बैठी है। अमेरिका का कोई ऐसा बड़ा अदारा नहीं है जिसका सरबराह इल्यूमिनाटी या उनका गुलाम ना हो। दुनिया के निजाम पर कब्जे की बात हो या किसी मुल्क पर जुल्म की रात फैलानी हो, उसके तमाम मंसूबे अमेरिका में ही तश्कील पाते हैं, क्योंकि अमेरिका में मौजूद हैं शैतान की परस्तश करने वाली 12 नस्लें जिन्हें इल्यूमिनाटी कहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये वो लोग हैं जिनके लिए सदर एक मोहरा होता है और वो उस मोहरे को बड़ी महारत से इस्तेमाल करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे बेवकूफ इंसान का सदर बनना इस बात का मुंह बोला सबूत है कि अमेरिकी हुकूमत किसी सदर या वजीर आज़म के कंट्रोल में नहीं चलती, बल्कि उसके पीछे शैतान की फौज के जनरल बैठे होते हैं जो भरपूर अवामी मुखालफत के बावजूद किसी को भी सदर बनाते हैं। जबकि खुद अमेरिका की बेबसी का ये आलम है कि अपनी मर्जी की करेंसी भी नहीं छाप सकता। उसके लिए भी इसे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका से इजाजत लेना पड़ती है, जो सूद पर अमेरिका को करेंसी मुहैया करता है। ये हकीकत है कि अमेरिका की तमाम मुआशी और दफाई पॉलिसियों पर सेक्रेट सोसाइटीज का कब्जा है। ख़वातीन और हज़रात, जरा बात अब होती चले एरिया 51 पर। एरिया 51 दुनिया की उन पुरसरार जगहों में से एक है जो अपने अंदर बहुत गहरे राज रखती है। लास वेगास से 50 किलोमीटर के फासले पर मौजूद अमेरिकी एरिया 51 से मुतल्लिक मशहूर है कि वहाँ एलियंस को देखा गया है, वहाँ यूएफओज को अक्सर परवाज करते देखा गया है।
इस बात पर सदाकत की मोहर उस वक्त लगी जब एक अमेरिकी साइंटिस्ट वाइड बुशमैन ने दावा किया कि वो इस एरिया में एक अरसा काम करते रहे हैं। इस दौरान यहाँ उनकी कई बार एलियन से मुलाकात हुई। वो कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसे तजर्बात होते हैं जिन्हें बताया नहीं जा सकता। ख़वातीन हज़रात, साफ बात ज़ाहिर है कि इल्लुमिनाटी दज्जाल और शैतान की फौज है। अमेरिका पर उनकी हुकूमत है। जाहिर है वो जहाँ रहते हैं वही कुछ खुफिया अमाजगाहें तो बनाएंगे ही। दरअसल एरिया 51 में एलियंस और यूएफओ तैयार की जाती हैं। मेरे जाती ख्याल के मुताबिक, और ये ख्याल गलत भी हो सकता है, लेकिन अमेरिका का यूएफओ से ताल्लुक, दुनिया के पुरसरार जगहों पर जो अमेरिका का ताल्लुक साबित हमेशा से होता है, उसको देखते हुए मैं कहता हूँ कि एरिया 51 में एलियंस और यूएफओ तैयार की जाती है। इसके अलावा वो टेक्नोलॉजी तैयार की जाती है जिसका हमें ख्याल तक ना गुजरा हो। मुस्तकबिल में इसे आलमी जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम अमेरिकी अदारे नासा की रिपोर्ट को देखें तो वहां हमें एक अलग मंजर नजर आएगा। हमें जमीन पर एलियंस की धमाका खेज एंट्री की कई तैयारियां नजर आएंगी। बड़े बड़े साइंसदानों और सियासतदानों को एलियन से मुतल्लिक स्क्रिप्ट लिख कर दे दिए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ एरिया 51 में एलियन और यूएफओ को कई बार देखा जा चुका है। बाज़ इतलात के मुताबिक एरिया 51 में इंसान और एलियन इकट्ठे रहते हैं। अगर हम अमेरिकी नक्शा तफसीली तौर पर देखें तो हमें कहीं भी एरिया 51 नजर नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिकी हुकूमत उसे दुनिया की नजरों से पोशीदा रखना चाहती है। माजी में जब एक नक्शे पर एरिया 51 दिखाया गया तो उसे फौरी तौर पर गलत इंफॉर्मेशन मैप करार देकर हटा दिया गया, जबकि इंटरनेट पर उसकी एक कॉपी अभी तक मौजूद है। मेरा यकीन है कि एलियन जब भी जमीन पर हमलावर होंगे, अगरचे मीडिया उन्हीं शानदार अंदाज में आता जाता दिखाएगा, लेकिन हकीकत में ये एलियंस और यूएफओ किसी दूसरे तीसरे सियारे से नहीं बल्कि एरिया 51 जैसे सैकड़ों पुरसरार इलाकों से आ रहे होंगे। ख़वातीन हज़रात, ये बात तो जाहिर हो चुकी है कि अमेरिका, इल्लुमिनाटी और एलियन एक ही चेहरे के कई रंग हैं, लेकिन मुझे यहाँ एक और चीज भी चौंका देने वाली नजर आई है। अगर हम सही व ज़ईफ अहादीस मुबारका का मुताला करें तो हमें दज्जाल की सवारी से मुतल्लिक बिल्कुल वाज़ेह मालूमात मिलती हैं। हैरत अंगेज तौर पर दज्जाल की सवारी और यूएफओ में बहुत ज्यादा ममासलत पाई जाती है। मिसाल के तौर पर अहादीस में बयान हुआ है कि दज्जाल चमकदार गधे पर सवार होगा। हैरत अंगेज तौर पर यूएफओ को यूनानी जुबान में उड़न गधा भी कहते हैं। यूएफओ की बॉडी हमेशा नहायत चमकदार होती है, ऐसी चमक जो सूरज की रोशनी से भी मुतासर नहीं होती। यूएफओ के अंदर से निकलने वाली टेक्नोलॉजी भी मुख्तलिफ रोशनियों पर मबनी होती है। हर रोशनी का अपना एक फंक्शन होता है। मसलन एक रोशनी जमीन से चीजें ऊपर खींचती है तो दूसरी मवासलाती निजाम जाम करने की सलाहियत रखती है। इसी तरह तीसरी रोशनी कशिश शकल पर असर अंदाज होती है, जिसकी बदौलत महज 2 मिनट में या 1 मिनट में यूएफओ पाकिस्तान जैसे किसी भी मुल्क को अबूर कर सकती है। ख़वातीन हज़रात, इब्ने अबी शेबा में रवायत है कि दज्जाल की सवारी फजा में रुक सकेगी। ख़वातीन हज़रात, चूंकि यूएफओ का ताल्लुक फजा और हवा से नहीं होता, ये कशिश शकल के लहरों पर सफर करती है। यही वजह है कि इसके अंदर कई दिन तक फजा में मुअल्लक रहने की सलाहियत मौजूद होती है। अब आप सोचेंगे कि इमरान अदीब कैसी कैसी बातें कर रहा है, हम जहाज से आगे नहीं निकल पाए हैं और ये उड़ने वाली कशिश शकल पर उड़ने वाली किसी खलाई मशीन का जिक्र कर रहा है जो 1 सेकंड में 700 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय कर जाती है। मेरे अजीजों, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ये टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो चुकी है। अब मंजर पर उभर रही है स्टारशिप। ये इस कदर तेज तरीन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है कि जमीन से चांद तक का फासला 1 से 1.5 मिनट में तय कर लेती है। ये कशिश शकल के बजाय सूरजों और सितारों की रोशनी पर सफर करती है, यानी हमारी जमीन के गिर्द 1 मिनट में 100-150 से ज्यादा चक्कर लगा सकती है। ये टेक्नोलॉजी यूएफओ टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। दिलचस्प बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी को खुफिया नहीं रखा गया, बल्कि इसे पूरी तरह न्यूज कास्ट किया गया है। इसके पीछे भी एक राज है, लेकिन वक्त के पेश नजर हम आगे बढ़ते हैं। अलबत्ता मुमकिन है कि यूएफओ का नया विजन भी तैयार किया जा रहा हो जो स्टारशिप जितना जदीद हो। ख़वातीन हज़रात, नईम इब्ने हमाद ने अपनी किताब अल फतह में रवायत नकल की है कि दज्जाल की सवारी खुश्की और पानी में यकसां सफर करेगी। यही रवायत कंजुल अमाल में भी मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, यूएफओ टेक्नोलॉजी को हर लिहाज से जदीद तरीन बनाया गया है। ये पानी में लेजर लाइट की तरह सफर कर सकती है।
इसी तरह हवा और खुश्की पर भी इसकी रफ्तार गैर मामूली है। ख़वातीन हज़रात, सही मुस्लिम में नवास इब्ने समआन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तवील रवायत मौजूद है कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की सवारी ऐसे सफ़र करेगी जैसे तेज़ हवा बारिश को उड़ा ले जाती है। एक दूसरी रवायत में है कि दज्जाल के लिए दुनिया मेंढे की खाल की तरह लपेट दी जाएगी। वो सूरज गुरूब होने से पहले उसके गुरूब होने की जगह पहुंच जाएगा। उसकी आवाज़ मशरक और मगरब में सुनाई देगी। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त दुनिया में जितनी भी ट्रैवल टेक्नोलॉजी मौजूद है, अगरचे वो अपने दौर की बड़ी सुपर हो सकती हैं, बड़ी फास्ट हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ यूएफओ वाद ट्रैवल टेक्नोलॉजी है जो एक दिन में मशरक और मगरब का चक्कर लगा सकती है। चूंकि यूएफओ अमेरिका और इसराइल की इजाद है, यहाँ हम एक मिसाल ले लेते हैं। जब तक हमारे जंगी जहाज अमेरिका पहुंचेंगे तब तक यूएफओ हमारे पाकिस्तान से अमेरिका तक का फासला 7 बार तय करके वापस जा चुकी होंगी। इतनी इसकी रफ्तार है, ये मैं अंदाजा बयान कर रहा हूँ। यानी हम यकीन से कह सकते हैं कि दज्जाली फौज की अहम टेक्नोलॉजी यूएफओ ही वो वाहिद गदा है जिस पर दज्जाल सवार होगा और चंद सेकंड में दुनिया के किसी भी हिस्से पर पहुंच जाएगा। ख़वातीन हज़रात, दिलचस्प बात यह है कि यूएफओ की एक किस्म बहुत कम दिखाई दी है। उसके मुंह की तरफ 2 कान नमा पर होते हैं। वो जब भी दिखाई दी है उसके साथ बहुत सारी छोटी बड़ी यूएफओ जरूर होती हैं, जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि उस यूएफओ के अंदर बैठने वाला कोई आम शख्स नहीं है। यूएफओ के टेक्निकल जायजे में जो रिपोर्ट मैंने देखी है, यूएफओ की जो मैंने डिटेल पढ़ी है, जो मैंने उसको नोट किया है, उसमें ये चीज भी बड़ी मुझे दिलचस्प लगी कि यूएफओ में बाकायदा लाइव ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी भी निस्ब की गई है, जो किसी भी मुल्क के मवासलाती निजाम को जाम करके अपना पैगाम जारी कर सकती है। यूं पूरी दुनिया के सैटेलाइट सिस्टम हर वक्त एलियन और यूएफओ के खतरे में गिरे रहते हैं। हदीस के मुताबिक दज्जाल की आवाज मशरक व मगरब में सुनी जाएगी। इस बात पर मैं ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि आज मीडिया की बदौलत एक आम आदमी की आवाज भी मशरक व मगरब में पहुंचाई जा सकती है। ख़वातीन हज़रात, एक दूसरी रवायत में है कि दज्जाल के गधे के साए में 70,000 लोग ठहर सकते होंगे और दज्जाल की फौज में ज्यादा तादाद जानियों की औलाद और यहूदी होंगे। ख़वातीन हज़रात, यूएफओ टेक्नोलॉजी की एक खासियत ये भी है कि उसमें जो प्लास्टिक इस्तेमाल की गई है उसे बहुत ही खास अंदाज में तरतीब दिया गया है। यही वजह है कि यूएफओ बवक्ते जरूरत अपना साइज बहुत बड़ा कर सकती है, जिससे देखने वालों पर हैबत तारी हो जाती है। रवायत के दूसरे हिस्से में कहा गया है कि दज्जाल की फौज में ज्यादा तादाद जानियों की औलाद और यहूदी होंगे। ख़वातीन हज़रात, इल्लुमिनाटी और आलमे कुफ्र हजरत ईसा की आमद और हजरत इमाम मेहदी के तशरीफ आवरी से इतना खौफज़दा हैं, आलमी जंग से इतने ज्यादा डरे हुए हैं ये लोग कि ये जानने के बावजूद कि पूरी दुनिया में उनकी तखरीबकारी मुकम्मल कामयाबी से जारी है। मजहब और मुआशरे इनकी तखरीबकारी की लिपट में आ रहे हैं। फनकार, सियासतदान, बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी शख्सियात इनसे हाथ मिलाकर लाखों लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। मीडिया और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियां सिर्फ उन्हीं की हम कदम हैं। इस सब के बावजूद वो इतने डरे और बुखलाए हुए हैं कि अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक में बच्चे पैदा करने के लिए बाकायदा अदारे खोल दिए गए हैं, जहां हरामी बच्चे पैदा किए जाते हैं। फिर उन बच्चों की माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है। उसके बाद इन्हीं आर्मी ट्रेनिंग के मरहलों से गुजारा जाता है। अच्छा, अब बहुत सारे हजरात कहेंगे कि नहीं जी, यूरोप की आबादी कम है, वहाँ मर्दों की तादाद कम हो रही है, औरतों की तादाद बढ़ रही है, तो आबादी के तनासब को पूरा करने के लिए वहाँ जो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो फिर मेरा उनसे सवाल यह है कि उन्हें आर्मी ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, उनकी माइंड प्रोग्रामिंग क्यों की जाती है? यकीनन इस सवाल का आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। ख़वातीन हज़रात, पूरा यूरोप और इसराइल धड़ाधड़ एक बहुत बड़ी फौज तैयार करने में लगा हुआ है। यही वो फौज है जो आलमी जंग में एक भयानक सुनामी बनकर इस्लाम के खिलाफ उभरेगी, और इस सुनामी में मेरे और आप जैसे हजारों वो आम लोग होंगे जिन्हें बड़ी ही महारत से बेवकूफ़ बनाकर दज्जाल के लश्कर में शामिल किया गया होगा। और यही वो फौज होगी जो इस्लाम के खिलाफ एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। ख़वातीन हज़रात, हदीस में जानियों के बाद यहूदियों की बात हुई है। इल्लुमिनाटी दरअसल यहूदियों की एक खुफिया तंजीम है। उस जैसी न जाने कितनी खुफिया तंजीमें दिन रात वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रही हैं।
ان کا ٹارگٹ صرف اسلام ہی نہیں ہے بلکہ دنیا کا ہر مذہب ہے، ہر معاشرہ ہے۔ خواتین و حضرات، شاید آپ کو معلوم ہو کہ اس وقت اسرائیل کے پاس 3000 سے زائد ٹیکنالوجی انڈسٹریاں ہیں، جن میں سافٹ ویئر، سیٹلائٹ، انٹرنیٹ، مہلک امراض کے توڑ، موبائل، کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور اس کے بعد دفاعی ٹیکنالوجی، نہ جانے کون کون سی وہ ٹیکنالوجی ہے جو ان کے پاس ہے۔ عالمی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کو دنیا کا سب سے بڑا طاقتور ملک قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ہم سے 400 سال آگے جی رہے ہیں۔ وہ ہوا، بادل، بارش، بیماریوں اور طوفانوں پر قابض ہو چکے ہیں۔ اب فقط اس کا اظہار باقی ہے۔ اگرچہ بہت ساری رپورٹس کے مطابق یعنی کہ مصنوعی بارشیں، مصنوعی سونامیاں، اس کے بعد بیماریوں کا آنا، بیماریوں کا توڑ نکالنا، بیماریوں کو پیدا کرنا، بیماریوں کو نئی جدت دینا، اس کے بعد طوفانوں کو کریٹ کرنا، یہ سب کئی بار تجربات میں آ چکا ہے۔ بہت ساری میڈیا رپورٹس میں بھی یہ ساری چیزیں ثابت ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کھل کر اظہار نہیں کیا گیا۔ اب اس کا فقط اظہار باقی ہے جو دجال کی آمد کے بعد اسے خدا ثابت کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ ایلین اور UFO کسی دوسری دنیا کے مخلوق نہیں ہیں، کسی دوسرے تیسرے سیارے کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ شطرنج کے وہ مہرے ہیں جو عالمی جنگ میں کھیلے جائیں گے۔ اگر ایلین کسی اور دوسرے تیسرے سیارے کے مخلوق ہوتے تو انہیں ہمارے سیارے کی آب و ہوا کیسے موافق آتی ہے، جبکہ ان کے انداز و سکنات بتاتے ہیں کہ وہ کسی اور سیارے کی مخلوق نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، عالمی تخریب کاری کا دور شروع ہو چکا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس سے متعلق فرمایا گیا کہ ایک زمانہ آئے گا جب فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ بیٹھا کھڑے سے بہتر ہوگا اور کھڑا چلتے سے بہتر ہوگا۔ خواتین و حضرات، ان فتنوں کو ایریا 51 جیسے سینکڑوں خفیہ علاقوں میں ڈیزائن کیا جاتا ہے، پھر ان پر بات کرنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے، ان پر ریسرچ کرنے والوں کو مار دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تاش کے وہ پتے ہیں جنہیں وقت سے پہلے ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین و حضرات، عالمی جنگ بہت قریب ہے، ہوائیں چل چکی ہیں، موسم تیور بدل رہے ہیں، صحرائیں کانپ رہی ہیں، ہم وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا۔ لیکن اہل اسلام، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ میدان بدر ہے جس میں ہماری تعداد کم ہوگی، سامان جنگ بھی ہمارے پاس قلیل ہوگا، دوسری طرف دشمن کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ایک مجاہد صبح سے شام تک تلوار چلائے اور اس کا ایک وار بھی خالی نہ جائے، اس کے باوجود دشمن کی ہزاروں صفیں پھر بھی موجود ہوگی۔ ہمیں ایک ایسی جنگ لڑنے جا رہے ہیں، ایک ایسا میدان بچنے والا ہے، لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مقدس نے ہمیں صرف ہمہ وقت تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ جیت اور ہار کا فیصلہ میرے رب کریم کریں گے، کیونکہ رب کریم کو حق محبوب ہے اور وہ اسے غالب کر کے رہیں گے۔ اہل اسلام، خوش ہو جاؤ کہ اس عالمی جنگ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل، ہم اخلاق اور نہایت محبت کرنے والے بیٹے امام مہدی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ان کے پاس وہ ساری منصوبہ بندی ہوگی، ان کے پاس وہ ساری منصوبہ بندی اور ذہانت ہوگی جو عالمی جنگ کی فتح کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف باخبر رہنا ہے، ہمیں صرف تیار رہنا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ڈاکومنٹری، آج کی ہماری رپورٹ، ایکسپوز ورلڈ کی رپورٹ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے کر لیں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آسمان سے اترتے کچھ پراسرار سگنلز پر۔ اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، سب سے بڑا سوال یہ ہے آخر وہ کون ہے جو خلا سے ان پراسرار سگنلز کو بھیج رہا ہے؟ ہاں، کوئی تو ایسا ہے جو بہت جلد زمین پر اتر رہا ہے، مگر وہ کون ہے؟ منتظر رہیے ہماری اگلی ویڈیو کا، ہماری اگلی ڈاکومنٹری کا۔ تو دیکھتے رہیے ایکسپوز ورلڈ۔